Good morning, students. Welcome back to your financial management class. Today, I, Ritu Singh, will continue with the subject of financial management and its lecture. In last lecture, we started with the capital budgeting chapter. It is a part of Unit 2. So, we'll go beyond that today. So, let's start with it. So, in last lecture, we discussed that what is capital budgeting and its theoretical aspects of this topic. So, so what was the nature of investment decisions? We talked about that whenever a firm wants to do expansion, acquisition of new firms, modernization and displacement, then investment decisions comes in hand. Then what were the features of these new investment decisions? It was exchange of current funds for future benefits. The funds are invested in long-term assets and the benefits occurs over the series of year. Then why this investment decision and these capital budgeting decisions were important? Because it's important for a company to grow. If the company grows, then only the profit increases and it benefits the shareholders and the employees both. Then it was about risk taking capacity. Then investment decisions talk about the funding, from where the funding is going to come, and these investment decisions are irreversible because these involve a huge amount of money, so they are irreversible. And even if they are irreversible, अगर इन decisions को हम reverse भी करते हैं तो they are going to cost a substantial amount of money for the firm also. And the last point was that they are hugely complex. Then there were different types of investment decisions, and the classification was as follows. The first was the expansion of existing business, the second was expansion of a new business, and then it was replacement or modernization. Then we also classified investment on three other bases. Mutually exclusive investments, that means जब investments आपस में mutually exclusive होते हैं, जब एक investment के basis पे दूसरा investment किया जाता है. Then there are independent investments, when one investment decision doesn't affect other. And the next was contingent investment, जहाँ पे ये केस आ जाता है कि अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपको दूसरा करना पड़ेगा, या फिर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ले रहे हैं तो दूसरे में भी आपको इन्वेस्टमेंट शायद करना ही पड़ेगा. देन नेक्स्ट वाज द इन्वेस्टमेंट एवेल्युएशन क्राइटेरिया. इन्वेस्टमेंट करने के क्राइटेरियाज क्या थे? पहला क्राइटेरिया था इवेल्युएशन और एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट देने वाला है. देन एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कितना रिटर्न चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पे. व्हाट डज वी वांट, what rate of interest of return we want with our investment. And then the last was the application of decision rule to make the choice. ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट हो, एक ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के लिए हो. कई बार आपके पास एक से ज़्यादा डिसीजंस भी होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को फाइनलाइज करने के लिए. तो उस केस में हम डिसीजन रूल अप्लाई करते हैं कि कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है. क्या हम एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हमें स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रूल क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन तभी किया जाता है जब हम ये आइडेंटिफाई कर सकें दैट इट विल इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. We have to consider the all cash flows we have to consider the true profitability. Then we have to provide an objective and unbiased way to separate the good projects from the bad projects. ओके. देन फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी है. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं तो हमें ये रैंकिंग भी करनी पड़ेगी कौन सा प्रोजेक्ट कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए. The next was you should recognize the fact that bigger cash flow are preferable to smaller ones. तो प्रोजेक्ट को कंसिडर करते समय, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते समय हमें ये भी डिटरमाइन करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें बेटर कैश फ्लो देगा. Then we have to identify the projects between mutually exclusive projects also, and we have to apply some method which gives the equal results with everyone.
हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस को लेने के लिए हमें ऐसे क्राइटेरिया को चूज़ करना पड़ेगा कि वो हमें हर बार अनबायस्ड रिजल्ट दे। ऐसा ना हो कि जो क्राइटेरिया हम एक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हम दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ ना कर पाए। देन नाउ कमिंग टू द सेकेंड लेक्चर, जो सेकेंड लेक्चर का जो मेन टॉपिक है कि हमारे पास दो तरीके के इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज होते हैं। कैपिटल बजटिंग में वी यूज टू टाइप्स ऑफ डिसीजन क्राइटेरियाज टू आइडेंटिफाई विच इज़ द बेटर प्रोजेक्ट और वेयर द इन्वेस्टमेंट शुड बी डन। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, जिसे हम DCF क्राइटेरिया भी कहते हैं, और दूसरा है आपका नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया, जिसे हम ट्रेडिशनल क्राइटेरिया भी कहते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया को हम लोग डिस्काउंटेड या DCF क्राइटेरिया इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो तीनों मेथड हैं आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। तो जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है, हम जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ेंगे और जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पढ़ेंगे, ये तीनों ही मेथड्स आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। और पहली यूनिट में, फर्स्ट यूनिट के लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी is that factor or is that reason where we consider that the value of money decreases over time। तो हम ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में जो हमें प्रोजेक्ट्स के कैश फ्लोज आने वाले हैं, their present value is going to be different। So if their present value is going to be different, that means our cash flows will have a different value। That is why we consider time value of money here to make sure that we are making appropriate profit। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो में हम ये जानने की, ये कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि हम जो प्रॉफिट बना रहे हैं, जो भी प्रॉफिट हमें इस प्रोजेक्ट से होने वाला है, वो हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स को पूरा करेगा एंड इट विल नॉट टेक अस इनटू एनी काइंड ऑफ लॉस। तो आपके जितने भी मेथड्स हमने यहाँ पे इन्यूमरेट किए हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये आपके आते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया के अंदर। Then the next point is the non-discounted cash flow criteria, जिसे हम ट्रेडिशनल क्राइटेरिया भी कहते हैं। हम ट्रेडिशनल क्राइटेरिया इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है। यानी कि पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं आपके फ्यूचर कैश फ्लोज की, और उसके बेसिस पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। Here we have write another word of discounted payback period। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला लगाते तो हैं, बट हम इसे नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो में ही रखते हैं बिकॉज इट इज़ जस्ट अ फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ पे बैक पीरियड। देन टुडेज टॉपिक, इस लेक्चर का जो मेन पॉइंट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? हमने यहाँ पे तीन वर्ड है, पहला है आपका नेट, दूसरा है प्रेजेंट और फिर तीसरा है वैल्यू। नेट का मतलब फाइनल वैल्यू, यानी कि ग्रोस माइनस फाइनल वैल्यू, या फिर हम ये कह सकते हैं प्रॉफिट माइनस लॉस के बाद जो नेट निकलता है वो कंपनी की नेट इनकम होती है। और वी कैन से द प्रॉफिट माइनस कॉस्ट के बाद, या फिर हम ये कह सकते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट के बाद जो प्रॉफिट निकलता है, दैट इज़ द नेट प्रॉफिट। ओके, सो सेम इज द क्राइटेरिया हियर विद द नेट प्रेजेंट वैल्यू। हम यहाँ पे नेट वैल्यू की बात कर रहे हैं कि जो फाइनल वैल्यू हमारी क्या आएगी, यानी कि एक हमारा कैश फ्लो होगा जो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में इतना आएगा, और फिर उस कैश फ्लो में हम डिस्काउंटिंग रेट लगाएंगे। उस डिस्काउंटिंग रेट के बाद हमें ये पता चलेगा कि उस फ्यूचर कैश फ्लो की एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू क्या है। वो जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, और वो नेट प्रेजेंट वैल्यू ये डिसाइड करेगी कि हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो लेट्स लुक एट द पॉइंट्स ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुड बी फोरकास्टेड बेस्ड ऑन रियलिस्टिक अजम्पशंस। किसी भी कैश फ्लो को, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के कैश फ्लो को डिफाइन करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, आपको रियलिस्टिक अजम्पशंस बनानी ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते, आपको मार्केट अजम्पशंस देखनी है, आपको डिमांड अजम्पशंस देखनी है, और इन सबको देखते हुए आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होंगे।
Then next point is appropriate discount rate should be identified to discount the forecasted cash flows. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ये जो डिस्काउंट रेट की बात कर रहे हैं वो जनरली किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट होता है. अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हर साल हर फाइनेंशियल ईयर के बाद आफ्टर एवरी फाइनेंशियल ईयर देयर इज़ अ 10% इंक्रीज इन इन्फ्लेशन और देयर इज़ अ 10% डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी. तो अगर 5 साल बाद आपको जो भी कैश फ्लो मिलने वाला है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ये हमारे लिए डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो उसके लिए हमें एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट लगाना पड़ता है. Then the next point is present value of cash flow should be calculated using the opportunity cost of capital as the discount rate. तो जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है फ्यूचर कैश फ्लोज की, तो वो एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट से कैलकुलेट की जाती है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से उसको डिफाइन किया जाता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कई बार पढ़ चुके हैं. आप जानते हैं कि जब हम एक प्रोजेक्ट को साइडलाइन करके दूसरा प्रोजेक्ट लेते हैं तो जो प्रोजेक्ट हम साइडलाइन कर देते हैं उसका जो प्रॉफिट हम जो फोरगो कर देते हैं उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं. तो उसके बेसिस पे उससे कंपेयर करके ही एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट बनाया जाता है. Then, the net present value should be found out by subtracting present value of cash outflows from present value of cash inflows. The project should be accepted if NPV is positive. तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है या जो लास्ट स्टेटमेंट जो हमने यहाँ डिस्कस किया है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. It's very important here because this is going to form the one line answer for your exams. अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है, रिटन एग्ज़ाम होगा और उसमें आपको वन लाइन के आंसर लिखने हैं तो आपको ये लाइन नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी. तो ये क्या कह रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी तब निकलती है जब आप फ्यूचर कैश आउटफ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे आप कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू से माइनस कर देते हैं. यानी कि आप समेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज लेते हैं और उसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है उसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं. और नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होता है. ओके, so I will repeat it here again. This is very important point and very important line क्योंकि अगर आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है इस पॉइंट पे तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी. आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे. तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम फ्यूचर कैश आउटफ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू से कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करते हैं और डिडक्ट करते हैं और तब जो वैल्यू आती है उसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए. अगर वो पॉजिटिव आती है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है. अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होता है. So moving forward, so we can see here the formula written. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखा हुआ है, NPV is equals to under bracket C1 upon 1 plus K, C2 upon 1 plus K square, C3 upon 1 plus K cube and Cn upon 1 plus K power n minus C naught. यहाँ पे जो आपका C naught है here द सी नॉट रिप्रेजेंट्स योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका वो है जो कि आप प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आइडेंटिफाई किया गया है. और ये क्या है, C1 आपका कैश फ्लो है जो कि आपको पहले साल में मिलेगा. C2 आपका कैश आउटफ्लो है जो कि आपको दूसरे साल में मिलेगा. C3 आपका कैश आउटफ्लो है जो आपको तीसरे साल में मिलेगा. और Cn आपका कैश आउटफ्लो है जो आपको nth ईयर में मिलेगा. तो ये फॉर्मूला डिपिक्ट करता है कि n नंबर ऑफ ईयर्स तक अगर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो आपको कितना कैश इनफ्लो आउटफ्लो देंगे
अ, कितना आपका कैश जनरेट करेंगे, कितना प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और उस टोटल प्रॉफिट से, उस टोटल प्रॉफिट की जो प्रेजेंट वैल्यू से जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो यहाँ पे फॉर्मूला हमने ब्रैकेट्स में लिखा है, जब हम इसको मैथमेटिकली समेशन फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है सी टी अपॉन समेशन सी टी अपॉन वन प्लस के पावर टी माइनस सी नॉट। और एनपीवी के केस में ये जो वैल्यू है आपकी, ये पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर एनपीवी के केस में ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, दैट मीन्स कि आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉफिट बना रहे हैं। प्रॉफिट बनाने का मतलब ये है कि दैट मीन्स यू कैन गिव मोर टू योर शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज ऑल्सो। सो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि हम कोई भी बिजनेस, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, और अगर हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस को करते समय आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, और मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैंने आपको जो फर्स्ट यूनिट के नोट्स पढ़ाए थे उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाया था, उस समय भी कहा था कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक फार्मूला बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, और वो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला था, एंड दैट फार्मूला वाज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर पावर एन। ओके, ये हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक फार्मूला था। तो अब इस फॉर्मूले में आपको फ्यूचर वैल्यू पता है, रेट ऑफ रिटर्न पता है, और नंबर ऑफ ईयर्स पता है। आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि फ्यूचर में अगर आपको इतना अमाउंट मिलने वाला है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, अगर हम उसमें फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिस्काउंटिंग रेट, सभी चीज़ों को कंसिडर करें। तो वही बेसिक फार्मूला हमने इस फॉर्मूले में लगाया है। यहाँ पे जो आपका C1 है, जो कैश फ्लो है, जो कि आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, तो फ्यूचर वैल्यू है। के आपका रेट ऑफ रिटर्न है, एंड एन यहाँ पे जो है कि आपको कितने समय बाद वो अमाउंट मिल रहा है। तो बेसिकली इट्स अ सिंपल बेसिक फार्मूला, सिंपल फॉर्म ऑफ योर बेसिक फार्मूला ऑफ योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ओनली। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पावर एन। तो इस इक्वेशन में जब हम को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर पावर एन। तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, अज्यूम दैट अ प्रोजेक्ट एक्स कॉस्ट 2500 नाउ। आज की डेट में प्रोजेक्ट एक्स आपका 2500 कॉस्ट कर रहा है, और ये एक्सपेक्ट करता है कि हर साल के एंड में ये कुछ प्रॉफिट जनरेट करेगा, कैश इनफ्लो जनरेट करेगा, जो कि आपका होगा 900 रुपीज़, फिर अगले साल में होगा 800 रुपीज़, नेक्स्ट होगा आपका 700 रुपीज़, एंड नेक्स्ट होगा 600, एंड नेक्स्ट होगा 500, फ्रॉम ईयर्स 1 to 5। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर जिसे हम डिस्काउंटिंग रेट भी कहते हैं, इज अज्यूम टू बी 10% हियर। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या जो डिस्काउंट रेट है वो 10% है। तो हम एनपीवी का सिंपल फॉर्मूला रख देंगे, हम यहाँ पे इस पर लेबलिंग कर लेंगे दैट 900 इज द C1, 800 इज द C2 सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो है, 700 इज द C3 फॉर थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो, 600 इज द फोर्थ ईयर इनफ्लो, एंड 500 इज द फिफ्थ ईयर इनफ्लो। और हम ये सारी चीज़ें इक्वेशन में रख देंगे, और क्योंकि हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो 10% है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ आर इन दिस फार्मूला और के इन दिस फार्मूला। तो 900 अपॉन 1 प्लस 0.10 पावर 1, देन 800 अपॉन 1.1, 1 प्लस 0.1 पावर 2, देन सब्सिक्वेंटली 3, 4 एंड 5। और हम इस पूरे समेशन को -2500 करेंगे, जो कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो ये 2500 है दैट इज आर C नॉट। ओके, it is our C value of C naught। तो जब आप इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे, इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू में, तो हमने जब
टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था, व्हेन वी स्टडीड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स यूज कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज कर रहे थे। तो हम ये देखते थे कि कौन से साल में कितने परसेंट पे हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम उस वैल्यू टेबल के हिसाब से, फैक्टर वैल्यू टेबल के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 900 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 1 ईयर एंड 10% plus 800 into present value factor of second year and 10% plus 700 into present value factor of third year and 10%, then 600 into present value factor of fourth year of 10%, and rupees 500 into present value factor of fifth year and 10%। और इस हम पूरे समेशन को माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, जो कि हमारा है 2500। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे टेबल से, तो हमारी जो पहली वैल्यू आएगी, फर्स्ट ईयर में 10% पे वैल्यू आएगी 0.909, सेकेंड ईयर पे 10% पे वैल्यू आएगी 0.826, थर्ड ईयर में 10% पे वैल्यू आएगी 0.751, फोर्थ ईयर पे 10% पे वैल्यू आएगी 0.683, एंड फिफ्थ ईयर पे 10% पे वैल्यू आएगी 0.620। हम इन सारी वैल्यूज को अपने कैश इनफ्लो की वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 2725। ये हमारा समेशन है हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज का, और इसमें से जब हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया तो हमारा आंसर पॉजिटिव में ₹225 आया। तो सिंस आवर आंसर इज पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव आंसर मिला है, तो यानी कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। ओके, अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये जो वैल्यू आई है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वैल्यू आई है, इस पे भी हम डिस्कशन फर्स्ट यूनिट में काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं। वी नो ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो आपकी फैक्टर से आती है 1/1 प्लस आर पावर n के फैक्टर से आती है। तो अगर आपको एग्जाम में फैक्टर वैल्यू टेबल मिल रही है, इफ़ यू आर गेटिंग अ फैक्टर वैल्यू टेबल, देन इट्स वेल एंड गुड। आप डायरेक्टली वैल्यू टेबल से देख के ये वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो डिस्काउंट रेट आपको 10% दिया है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में 8% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। तो अगर आपको टेबल मिल रही है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द टेबल, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टेबल पे आप जाएंगे, वहाँ से आप वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और अपने क्वेश्चन में रख देंगे और आपका न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। पर अगर आपको टेबल नहीं मिल रही है एग्जाम में, इफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट अलाउड इन द एग्जाम, देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट इट बाय कैलकुलेटर मेथड। तो कैलकुलेटर मेथड से करने के लिए फिर आपको तब आपका ये फॉर्मूला यूज होगा 1/1 प्लस आर पावर n। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक नॉर्मल, अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर भी है, देन ऑल्सो यू कैन डू इट, इट्स क्वाइट ईजी, जो कि आपको क्लास में बताया जाएगा। और जो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स लूँगी उसमें भी हम ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, उसमें हम आपको कैलकुलेटर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सिखाएंगे। बिफोर दैट मैं आपको सारे मेथड्स पढ़ा देना चाहती हूँ कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड, सो दैट जब हम एक फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल करें तो हम उस एक न्यूमेरिकल को सभी मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आएगी इन मेथड्स को लेके। ओके, सो हियर इज एग्जाम्पल कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2500 रुपीज़ है, जो कि आपको आने वाले 5 सालों में, पहले साल में 900 रुपीज़, दूसरे में 800, तीसरे में 700, फोर्थ में 600 एंड फिफ्थ ईयर में 500 रुपीज़ का कैश फ्लो देने वाला है, फ्यूचर कैश फ्लो। अब ये क्योंकि ये कैश फ्लो आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं, तो इनकी एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी ये हम डिटरमाइन किया है हमने इस क्वेश्चन में। सो आफ्टर द 5 years हमको ये फाइनली दिखाई दिया कि इसका जो इन सारी वैल्यूज का जो समेशन है दैट इज 2725, जो कि आपका 2500 वैल्यू से अबव है बाय 225। आपका आंसर पॉजिटिव में 225 आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करें, अगर आपके क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाई एनपीवी इज इम्पोर्टेंट, व्हाई नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इम्पोर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंस है कि कंपनीज इसको यूज करती हैं। तो इसका जो सबसे पहला और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर
करता है। तो ये आपको एक प्रैक्टिकल एंड अनबायस्ड प्रोजेक्शन देता है फ्यूचर प्रॉफिट्स की। तो पहला पॉइंट जो इस टॉपिक का कह रहा है वो ये कह रहा है दैट द पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम अमाउंट firm would be ready to pay for purchasing the opportunity to make investment, or the amount at which firms would be willing to sell the right to invest without being financially worse off. तो पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी ये डिफाइन करती है कि फर्म कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसके बदले में उसको कितना फर्दर प्रॉफिट होगा और उस फर्दर प्रॉफिट को वो आगे के प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज कर सकती है. Then the next point is the net present value can also be interpreted to represent the amount a firm could raise at a required rate of return in addition to initial cash outflow to distribute immediately to its shareholder and by the end of the project's life to have paid off all the capital raised and return on it. तो जो पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू है, जो पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है, वो ये भी डिफाइन करती है कि हमें आगे कितना प्रॉफिट होने वाला है. यानी कि अगर हमने जो कैपिटल रेज की है शेयर होल्डर्स के थ्रू, डेटर्स के थ्रू, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमें जब उन्हें फाइनल पेमेंट करनी होगी, जब हमको उन्हें रिवर्स पेमेंट करनी होगी, तो क्या हमारा प्रोजेक्ट सफिशिएंट प्रॉफिट बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा. तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें सिर्फ प्रॉफिट इतना नहीं बनाना है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट लिख दें. हमें इतना प्रॉफिट बनाना है कि हमने अपने डेटर से जितना भी लोन लिया है कैपिटल रेज करने के लिए, हमने अपने शेयर होल्डर्स से भी जितनी शेयर कैपिटल ली है कैपिटल रेज करने के लिए, हम वो सब उन्हें वापस कर सकें डिविडेंड सहित. हम डेटर्स को उनका लोन उनके इंटरेस्ट के साथ वापस कर सकें. तो ये सारी चीज़ें हम डिटरमाइन करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू में. आफ्टर दैट इवैल्यूएशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, और उस इवैल्यूएशन से पहले आपका टॉपिक आता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक्सेप्टेंस रूल क्या है. ये आपको हमेशा याद रखना है. ये जो पॉइंट है ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा. वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट व्हेन द एनपीवी इज पॉजिटिव. अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है. यानी कि एनपीवी इज मोर देन 0. फिर दूसरी कंडीशन आती है व्हेन एनपीवी इज नेगेटिव. तो जब एनपीवी नेगेटिव है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ रही है, यू विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. यानी कि दैट एनपीवी इज लेस देन 0, तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे. फिर तीसरी कंडीशन आती है जहाँ पे आपकी एनपीवी 0 हो सकती है. तो उस केस में आप एनपीवी को एक्सेप्ट, इस एनपीवी मेथड को या उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं. एनपीवी 0 उस केस में आती है, उन केसेस में ये फैक्टर यूज किया जाता है जब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही होती है. तो उस केस में वो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर 0 भी आ रही होती है तो भी वो इन्वेस्ट करती है. वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि अगर वो इन्वेस्टमेंट वहाँ के रहने वालों के लिए, उस पॉपुलेशन में रहने वाले लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो वो एनपीवी 0 होने पर भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है. So the last statement reads that the NPV methods can be used to select between mutually exclusive project. तो हम NPV को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें रैंकिंग करनी है या हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें. तो उस केस में भी हम एनपीवी का यूज़ कर सकते हैं. और इस केस में अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं और तीनों की एनपीवी ही पॉजिटिव आती है, तो उस समय जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी हाईएस्ट होती है हम उसे सिलेक्ट करते हैं. ओके, तो ऐसा क्यों करते हैं? मान लीजिए आपके पास 1 या 2 या उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, आप तीनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर आप किस में पहले करें? तो हम ये यहाँ पे ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट की एनपीवी हाईएस्ट है. जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी हाईएस्ट होगी हम उसके प्रॉफिट को यूज़ कर सकते हैं अगले प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करने के लिए. तो इससे क्या होगा कि हम अपने सभी पसंद के प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और प्रॉफिट भी बना पाएंगे. एंड देन द लास्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन ऑफ एनपीवी मेथड. तो अब हर मेथड्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. तो एनपीवी
क्यों एक्सेप्टेबल है इन्वेस्टमेंट रूल के थ्रू में? तो उसके रीजंस क्या है? पहली बात तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। देन ये ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को भी कंसिडर करता है। वैल्यू एडिटिविटी को भी देखता है कि वैल्यू प्रॉपरली एडिटेबल है, एंड इज इट गिविंग टू सम मीनिंग टू द प्रोजेक्ट, एंड इज इट गिविंग टू सम काइंड ऑफ गुडविल टू द कंपनी ऑल्सो। और क्योंकि ये शेयर होल्डर्स वैल्यू को इंक्रीज करता है, तो एनपीवी एक एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट मेथड या एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट रूल है। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है इसकी? तो पहला ये कि इट इन्वॉल्व्स कैश फ्लो एस्टिमेशन। हम कैश फ्लो को, हमें फ्यूचर कैश फ्लोज को एस्टिमेट करना पड़ता है। कई बार हमारा जो फ्यूचर कैश फ्लो है हमारे एस्टिमेशन से ज़्यादा भी आ सकता है और हमारे एस्टिमेशन से कम भी आ सकता है। डिस्काउंट रेट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन। इस मेथड के डिस्काउंट रेट को डिटरमाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के टाइम पे काफ़ी डाइसी मेथड हो जाता है। इस कभी कभी कोई प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट तो ज़्यादा दिखा रहा होता है, बट वो अगर सोशली मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने में। और रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट में भी यही प्रॉब्लम आती है, जो कि हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के लिए डिस्कस किया है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो सिगरेट फैक्ट्री लगाए या फिर वो सीमेंट फैक्ट्री लगाए। नाउ सिगरेट फैक्ट्री जो है उसमें रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा, बट सिगरेट्स जो हैं, जो आपके जो निकोटीन सिगरेट्स हैं, दैट आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इस केस में क्या होता है कि कंपनी को सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाता है कि वो इस प्रोजेक्ट को शायद ना लगाए, भले ही इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन सीमेंट फैक्ट्री का है। तो सीमेंट फैक्ट्री विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, एंड सिगरेट फैक्ट्री से, निकोटीन फैक्ट्री से थोड़ा कम प्रॉफिट देगी, बट उसके भी अपने कुछ हेल्थ हजार्ड्स हैं। तो उसमें उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है और किस में नहीं करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ओके, तो हम एक क्लास में, एक लेक्चर में सिर्फ एक ही मेथड को पढ़ेंगे, एक ही मेथड को ध्यान देंगे, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। और लेक्चर को हर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ हल्का सा रिवीजन भी कराऊंगी, सो दैट योर माइंड बिकम्स फ्रेश विद द ओल्ड फॉर्मूलाज। एंड मैं फिर से रिपीट करूंगी आपको कि जो आपने फर्स्ट यूनिट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था, उसमें जो उसका बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, उसको हमेशा बहुत अच्छे से याद करके रखिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जितने भी फॉर्मूले थे उनको टाइम टू टाइम बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि उन फॉर्मूलों की हेल्प से आपको आगे के सभी न्यूमेरिकल्स करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज के इस लेक्चर का जो हमने मटेरियल तैयार किया था, वो हमने 3-4 बुक से तैयार किया था। लेट मी शो यू द रेफरेंस सेक्शन ऑल्सो। So here we can see that I took the reference of I am Pandey book by, and another book by Rustagi. So these are the main books for financial management. And if you are a student of finance, और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं एंड आप आगे जाके फ्यूचर में इसी फील्ड से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, इसी में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास कोई एक बुक या प्रॉपर वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जो कि जिस पे जाके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। एंड आफ्टर दैट आई एम ऑल्सो हियर एंड माई ईमेल आईडी इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप ईमेल आईडी के थ्रू पूछ सकते हैं। आप गूगल क्लासरूम के में भी जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, और आप मुझसे पर्सनली भी आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जब भी आपको क्लासेस अलाउ हो। सो दिस इज़ रितु सिंह साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज क्लास, and today's topic we discussed was net present value, and the next topic will be internal rate of return. So hope to see you soon, and आपको कोई भी फर्दर क्वेश्चन है, कोई भी फर्दर क्वेरी है, तो आप मुझसे क्वेश्चन बेझिझक पूछ सकते हैं। आई वुड ट्राई एंड आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल with best of my abilities. So thank you so much students for listening me so patiently, and hope to see you again for the next lecture as soon as possible. Thank you students.